அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நல்லதா பார்த்து உங்களுக்கு முடிச்சே விடுறேன். அதுக்குன்னு குரங்கு மாதிரி ஒரு அசிங்கத்தை பார்த்து கொண்டு வந்துருவேன் நான். ஜோசியர, யாருக்கு கல்யாணம்? கவலைப்படாதீங்க தம்பி, அப்பா வேலை முடிஞ்ச உடனே அதே கையோட உங்களுக்கு உன்னை பார்த்து முடிச்சிடுறேன். எனக்கு ஒண்ணு போதும் ஐயா, அப்பாவுக்கே ரெண்டு ஆகுது. ஏப்பா இது நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு? பேர பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டிய வயசுல உங்களுக்கு கல்யாணம் ரொம்ப அவசியம் தான்ப்பா. பணம் இருக்கு, பலம் இருக்கு, அழகு இருக்கு, அப்படி ஒண்ணும் தள்ளாடி போன வயசு இல்லடா எனக்கு. அதோட வயசான காலத்துல தாண்டா ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டியுடைய அன்பும் அருமையும் அவசியம். உலகம் தெரியாதவ. அது மட்டுமா, அப்பா ஜாதகத்துல இருக்க ரெண்டு பொண்டாட்டின்னு. என் ஜாதகத்துல கூட இருக்கியா உங்க கொலை செய்யணும்னு கொண்டுட்டுமா? ஐயோ தம்பி, இது முதலுக்கு ஆபத்து, என்ன விட்டுருங்க, நான் ஓடியே போயிடுறேன். நல்ல தம்பி, என்ன திமிரடா உனக்கு? நான் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டா உன் சொத்து குறைஞ்சு போயிடும் பயமா? உங்க சொத்து யாருக்கு வேணும்? வாழ எனக்கு வழி தெரியும், ஆனா இது தகாத காரியம். ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையும் இன்பத்தையும் சீர்குலைக்கிற வேலை. நான் இந்த வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் உங்க முயற்சி நடக்காது. நீ இங்க இருக்க முடியாது, போ வெளியே. அப்பா பெரிய பிடிச்ச மாதிரி பேசுறீங்க, இது நியாயமா அப்பா? சிவகாமி, நான் முடிவா சொல்றேன், நான் செத்தா என் பணத்து மேல விழுந்து அழுகிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை வேணும். பணத்தை கட்ட அழகா இப்ப நீங்க ஒரு பெண்ணை தெரியுங்களா? வயசுக்கு மீறல வச்சா பேசுற, போ. பெரிய போய் மிருகமாயிட்டீங்களா? மரியாதையா சொல்றேன், என் கல்யாணம் நடந்தே தீரும். உனக்கு சம்பவம்னா இரு, இல்ல உன் இஷ்டப்படி செய். இனிமே நான் இருக்குமா இந்த வீட்டுல? எனக்கு ஒரு அப்பா இப்படி இருக்கிறதே அவமா. வாழ வேண்டி நீங்க வாழுங்க, நான் போறேன். ஓட்டுக்காக எது விற்பனை கூட செய்ய தயங்க. தன் மனையை விற்று பிழைப்பவன் திமுக. இப்படிக்கு பெரியார் சொன்னது பெரியார். அவர் பெரியார் சிலையை வச்சு அங்கே வந்து நீ ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு அண்ணாமலை. அதே மாதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் வந்துட்டு பிறர் காலை நக்கி பிழைப்பன யாரு? சங்கரையா போன்ற மிக மகத்தான மனிதர்கள் இருந்த அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சொன்னது யாரு? பெரியார். பிறர் காலை நக்கி பிழைப்பவன் கம்யூனிஸ்ட். எப்போ? அப்போவே சொல்றாரு. இந்த மாதிரியான பெருந்தகைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கொச்சைப்படுத்திய பாரு, எவ்வளோ மோசமான வார்த்தைகளை இதோட மட்டகரமாக பேசியிருக்கிறார். இவரை கூட்டு வந்து ஒரு ஐக்கான் முன்னாடி நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. அதை கேள்வி கேட்டாக்க அது வந்து அண்ணாமலை சொல்றது கரெக்ட் தானே? அவர் சொல்லல, பெரியார் சொன்னதை சொல்றாரு. பெரியார் சொன்னதாக சொல்றதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. அதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ணலையே, பதிலே காணுமே.
क्या हो गया भाई, इतना चुप चुप क्यों है? भाई कल ही एक दुकान से ब्रेड लिया था और आज देखा तो साला खराब निकली। उसमें क्या हो गया भाई, वापिस करके आ जा। नहीं भाई वो मना कर देगा, और वैसे भी यार अच्छा नहीं लगता ना ऐसे वापिस करने जाना। भाई तूने ब्रेड का पैकेट पैसे दे के लिया था ना? ऑब्वियसली भाई पैसे दे के लिया हूँ। बस भाई यही तो दिक्कत है, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं पैसे देकर, तो अगर वो खराब निकलता है तो ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिप्लेस करने की। लेकिन अगर हम उसके पास वो खराब प्रोडक्ट लेकर ही नहीं जाएंगे तो रिप्लेस कैसे करेगा? इवन कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत अगर कोई शॉपकीपर खराब प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, मान ले अगर उसने मना कर दिया तो लीगल एक्शन कैसे लूंगा? ये नंबर है भाई कंज्यूमर हेल्पलाइन का, इससे तुझे सारी हेल्प मिल जाएगी। तो अभी जा शॉपकीपर पास, अगर वो मना करे तो तेरे पास ऑप्शन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विकास गावरे। के लिए भी एक अभिशाप बन चुका है। क्रिसमस, साल का वो दिन जिसे एक समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म और उनकी वैल्यूज को याद करने के लिए मनाया जाता था, अब केवल एक मटीरियलिस्टिक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है, जो समाज के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए भी एक अभिशाप बन चुका है। इस त्योहार में वैसे तो बहुत चमक धमक, उल्लास और खुशी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली सच्चाई बहुत दुखद है। क्रिसमस ट्रीज को रिसाइकिल करने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि इस आर्टिकल की शुरुआत में क्या लिखा है। इट्स टाइम टू गिव योर लगली डगलिस्ट फॉर द। एक बार काम पूरा हो जाने पर इसे फेंक दिया। इस पूरी सिचुएशन की असली प्रॉब्लम को समझने के लिए क्रिसमस ट्रीज की जर्नी को समझना जरूरी है। सिर्फ यूएस में कम से कम 3.5 लाख एकड़ जमीन क्रिसमस ट्रीज उगाने में उपयोग होती है। इस पेड़ को मैच्योर होने में लगभग 12 साल लगते हैं और हर साल 20 मिलियन से ज्यादा पेड़ हार्वेस्ट करके बेचे जाते हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट आगे भी बढ़ने ही वाली है। इन फार्म्स में क्रिसमस ट्रीज मोनोक्रॉप्स की तरह उगाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े एरियाज में सिर्फ यही एक पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बीमारियों और इंसेक्ट्स के हमले के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है। अब इससे बचने के लिए फार्मर्स हैवी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इन पेस्टिसाइड्स का कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बर्थ डिफेक्ट जैसे कई बीमारियों से डायरेक्ट कनेक्शन है। 12 साल के बाद इन पेड़ों को हार्वेस्ट करके ट्रक से मार्केट में और फिर लोगों के घरों में पहुंचा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ये हेविली पेस्टिसाइड रिडन पेड़ फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, वेयरहाउस अटेंडेंट्स, रिटेलर्स और फाइनली घर के बच्चों को टॉक्सिसिटी से एक्सपोज करते हैं। फिर क्रिसमस के अगले दिन होता है असली तांडव, जब सभी लोग इन पेड़ों को फेंकना शुरू करते हैं। या तो ये पेड़ लैंडफिल्स में डंप हो जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्बन एमिशन होता है, और फिर लैंडफिल्स में पड़े पड़े हर एक पेड़ मीथेन गैस और लगभग 16 kg CO2 गैस एमिट करता है। लैंडफिल के अलावा इन पेड़ों को जला देने का भी प्रचलन है। जलाने पर हर पेड़ करीब 4 kg CO2 रिलीज करता है। अगर आप गूगल पर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ क्रिसमस ट्री लेकर जाएंगे और अलग अलग आर्टिकल्स अपने बिजनेस के हिसाब से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट से हटाकर नेचुरल ट्रीज वर्सेस आर्टिफिशियल ट्रीज में कौन ज्यादा सस्टेनेबल है उसकी ओर लेकर जाएंगे, बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि लगभग 80 से 90% आर्टिफिशियल पेड़ भी चाइना से बनकर आते हैं। ये प्लास्टिक के पेड़ जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने का अपना अलग कार्बन कॉस्ट तो है ही, साथ ही इनके लॉजिस्टिक्स का भी हैवी कार्बन फुटप्रिंट है, जो कि चाइना से पूरे यूरोप एंड अमेरिका में फ्लाइट्स, ट्रेन्स, रोड्स और समुद्र के रास्ते से पहुंचाया जाता है। एस्टिमेट्स के अनुसार हर एक आर्टिफिशियल ट्री के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लगभग 40 kg CO2 एमिट होता है, और इसे जस्टिफाई करने के लिए लगभग 10 साल तक हर पेड़ को यूज करना आवश्यक है। अगर बाई चांस 10 साल यूज कर भी लिया, फिर भी आखिर में ये प्लास्टिक लैंडफिल्स में ही जाएंगे, और इसमें से निकलता लैंडफिल लैशे अंडरग्राउंड वाटर और आसपास की रिवर स्ट्रीम्स को जहरीला बनाता रहेगा। असल में इन दोनों विकल्पों में कोई भी विकल्प ग्रीन नहीं है। दोनों ही इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है। ग्रीन नहीं है, दोनों ही इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है। दोस्तों, एक तरफ है पेगन रिलीजन्स जो पेड़ों और नेचर को पूजते हैं, और दूसरी तरफ है ये वेस्टर्न कल्चर जो पेगन्स को इलिटरेट बताकर सालों से उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते आए हैं। वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पर ही अपना घर उजाड़ रहे हैं, ऐसा काम करते हुए जिसका ना तो कोई साइंटिफिक और ना ही कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है।
क्रिसमस सेलिब्रेशन को एक और चीज है जो और भी इनसेंसिटिव बना रही है, और वो है एक्स्ट्रावेगेंट कंज्यूमरिज्म या अत्यधिक उपभोग। तो 30 to 40% सेल्स फोर्थ क्वार्टर में ही होती है। इनफैक्ट सर्वेस बताते हैं कि यूएस में लोग उधार लेकर गिफ्ट खरीदते हैं, भले ही आइटम, और फिर ये सारा ट्रैश पहुंचता है रिसाइकलिंग, लैंडफिल्स या सीधा हमारे ओशंस में। कुल मिलाकर एस्टिमेट्स बताते हैं कि सिर्फ यूएसए में क्रिसमस के 3 डे सेलिब्रेशन में हर अमेरिकन लगभग 6 कार्बन टारगेट से काफी पीछे है। आई होप कि जैसे जैसे भारत के कल्चर की और सोच की छाप दुनिया पर बढ़ती जा रही है, ये डेवलप्ड देश भी हमारी संस्कृति से कुछ सीख ले पाएंगे। अननेसेसरी सेलिब्रेशन से ऊपर उठकर खुद और अपने प्लैनेट दोनों के प्रिजर्वेशन में सहयोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक